अनफॉर्चुनेटली जहाँ से वो नेल बेड है मेरा वो तो कट हो गया राइट पैर का एंड या दोज 2 months आई कुड इवन मैं खड़े नहीं हो पा रहा था मेरी स्किन ग्राफ्टेड थी वहाँ पे स्टिचेस थे बोन भी कट करना पड़ा वो टो का उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले मैंने एक पर्सन की बॉडी देखी वहाँ रोप्स के बीच में एंटेंगल थी एंड वो पर्सन आई थिंक 4-5 साल पहले गुजर गए होंगे वहीं पे अच्छा, how does it feel to be on top of the mountain or on top of this world? Yeah, absolutely. Like the phrase that has been being used on top of the world. That World. feeling is on top of the world, definitely. When you are at the highest point, like when I reached the top of Everest, the last 15 minutes were like a roller coaster. You know, वो equipments लेके जा रहे थे and एक crevasse जो जिसको हम बोलते हैं आइस में क्रैक होता है वो क्रॉस करते करते वो कोलैप्स हो गए लैडर में और immediately they got buried. Which was a very sad incident क्योंकि just सीजन शुरू ही हुआ था. कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो जहाँ आपको लगा हो कि यार आज ही मेरा लास्ट डे है, मुझे लगता नहीं कि Yeah. शायद मैं बचूं। Uh, चलिए आज फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नेशनल अवार्ड विनर से जिसने सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, समिट किया है। तो चलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। I've never done this in my life. Never dreamt also of doing this. but that is But it's what, fun. yeah, it's all Yeah. about, I mean, when I started mountaineering, it was about stepping out of my comfort zone. मेरे साथ Because, वही हो रहा है। yeah, And I feel awkward also sometimes. but it's okay. It's a part and process हाँ, of the learning, yeah. and you get so much out of it. That is what, makes you a good human being Yeah, in the end, because yeah, these are the small teachings that we get. yeah. Yeah. You will not believe कि you end up meeting new people and Absolutely. you end up meeting people you have never dreamt of. Exactly. और फिर आप उनके experiences तो at the end of the day आप सीखते तो बहुत कुछ हो। सीखते हैं, सिखाते हैं. Like, for example, I was at Camp 4 on Everest and I just summited and we came back to our tents. It was like very bad winds outside. The weather had turned back and it was like 50-60 kilometers hour की wind चल रही है. हम टेंट में हैं and बहुत थक गए लोग 16 घंटे चलने के बाद and टेम्परेचर भी सब जीरो में ड्रॉप हो गया है. सो मेरे साथ एक जॉर्जियन फ्रेंड थे मेरे. सो ही इज अ बिट एजेड, लाइक ही इज 52 years old, Otto. Okay. And he has also summited and absolutely brave guy. And we were sitting and I was a bit hungry. So वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं. ऑक्सीजन निकाला मैंने एंड मैं खा रहा था. सो बीइंग अ गुजराती आई लव थेपलाज एंड वी कैरीड एवरीवेयर इन आवर हार्ट. अच्छा। सो थेपला खा रहा हूँ मैं 8,000 मीटर की ऊंचाई पे. हाँ। And उन्होंने देखा and he's like, hey Keval, what are you eating? So I said, this is an Indian cuisine and yeah, my mom made it and I just got it here. So would you like to have some? He's like, I got some meat, but I'm not feeling like eating it. It's too heavy because your bowels get affected because of lack of oxygen. So आपका digestion process slow हो जाता है. So he said, yeah, sure, I don't mind. So I shared with him. He loved it. He's like, I was like literally going to puke and I had no energy, but this gave me energy. So whenever I come to India, for sure, I want this Thepla power. Thepla power, exactly. And then I had a word with like Gujarati midday mein main ek interview kar raha tha. So I told this story and then they put the title that Thepla on Everest. Obviously. Yeah, but that's how you exchange culture. So they loved and now he knows about Gujarati food. How is it? Yeah. And then I came to know that he's a Raj Kapoor fan because Acha. yeah, he's from Georgia and he listens to Raj Kapoor songs. So we have a recording of him singing Awara Hoon together. Acha. Yeah. So that's how we connected also, and he's in love with India now more because of the food and the music. And the So, culture, yeah. Yeah. That's how we spread Yeah, across. 100%. Yeah. Keval, so the most important question, how does it feel to be on top of the mountain or on top of this world? Yeah, absolutely. Like the phrase that has been being used on top of the world. That World. feeling is on top of the world, definitely. When you are at the highest point, like when I reached the top of Everest, the last 15 minutes were like a roller coaster, because I just spent 27 minutes on the top of Everest. But I had a flashback of 7 years of the whole journey that I Oh. was thinking about. So what led to it, what ignited the spark and passion in me to come here. And finally today I'm here with the blessings of my family, with the blessings of my ancestors, and lot of things with me. My friends have supported me.
whenever I'm down, they used to push me. अरे कोई बात नहीं, चल तू कर लेगा. And at that point of time, you are cut off from the whole world. Yeah. Network nahi hai. You cannot talk. You're homesick already. You have spent so much day in the cold. The temperature was nearly minus 45 to minus 50. Minus 50 degrees Yeah, Celsius. yeah. And I couldn't cry. I wanted to cry. I was overwhelmed. That thank God, I can see this. Like out of the 8 billion population, if you are one of that rare person who can step there, it is like 0.0000001% of that Yeah, population who is standing on top of the world. So very rare moment. But I couldn't cry because if I cry, my tears will freeze and the skin will peel out of it. So I have to control my emotions, but at the same time, to express was a different task. So that feeling, I would say I cannot put it in words, but I have experienced it, and for me, it's divinity. Who was the first person you thought about when you were on Everest? I would say I thought about my parents. It was their sacrifice, and also, I was doing my engineering, Hmm. and I left engineering in my final year. Okay. So I did 3 years of automobile engineering, and final year I decided that I want to, convert my passion into my profession. And being from a Gujarati family, we are like trained to be into business. Yeah. So it was very difficult, and I'm one from my community, the first one to climb Everest from my community. So it's like KVO, Kachi Visa Oswal Jain community. Okay. And it was very difficult to convince, everybody. But my parents, they understood my dreams, Hmm. and they said, it's okay to pursue your dreams. It's okay. And they did not even take a moment to tell me that, okay, if you want to move in that direction, you can go ahead. Like they said, sure, follow your heart where your heart lies. And that gave me more strength. And when I was pursuing this, I had lots of people saying like, you are living like a nomad. You are in the mountains for 19, 20 days. आपने नहाया नहीं है, आपके नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए. How are you staying like this? Hmm. And then they were like, how will you earn money? How will you, survive? फिर शादी कैसी होगी and everything. But my parents never thought anything. They just had one thing in mind, that if you are living your life and if you have confidence in what you are doing, go ahead. And finally, when I got a national award for this, then they understood, okay, this is something respectable, and mountaineering is not just about roaming or being a nomad, but there Yeah. is a lot of things involved in this. And then I think in return, their mindsets changed, and I got the recognition from them. And I think the whole credit goes to my parents. So when I reached on top of the world, Hmm. I had a banner made for them, for Mm. my family. So it had a picture of my dad, my mom, and my sister. Oh. And yeah, I thank them for all the love and support they gave. Without it, it would have not been Yeah, obviously, possible. Madhav, even I'm very sure ki they must have gone through so much Yes, when you were not yes, here and yes, you were practicing and you were absolutely. there. Yeah. Oh, I mean, it's a proud moment for us also, yeah, because you've come here, you've taken out time, and getting a national award is not a normal thing. Malab, it's I not so think, easy. yeah, but I think if you're honest and if you're disciplined and dedicated towards what you're doing, then definitely you will be rewarded. I mean, I never started mountaineering to get a national award Yeah, or correct. recognition. Hmm. I just started out of that. It was my passion, and I wanted to connect to nature because that was my happy place. And when you're climbing, I believe, like on the summit push itself, like there are thousands of reasons to turn around. Hmm. The weather is bad, it's windy, it's sub-zero temperatures, you're feeling cold. Hmm. Say on Everest, the summit push goes from somewhat around 14 hours to 16 hours. Hmm. You cannot have much because you're having your oxygen masks. And yeah, it's a terrible state, but to push in that, you have to find that one reason why. Hmm. So I think I found my reason. My reason was love for the mountains and nature. And I wanted to do this. So, I started my own shop. I started my own ventures where I could support, a living out of this, because Hmm. definitely it's a very expensive sport and it's an extreme sport. Acha. Yeah. Like for suppose if you have to climb Everest, it Mhm. goes up to 35 to 40 lakh rupees. Oh. Yeah. The permit itself used to cost $11,000 before, and now from the 1st of September, the Nepal Tourism Board has announced that there is a hike in the permit fee, so it will go up to 15,000 US dollars. 15,000 US dollars. Yeah, that's the royalty fees just you have to pay to get a permit to climb Everest. अच्छा, बाकी का खर्चा अलग है. अलग आपके जो गेयर्स हैं वो आपको 4 से 5 लाख रुपए के, बिकॉज स्पेशलाइज्ड गेयर होता है माइनस टेम्परेचर्स Oh. के लिए, जो हाँ, डाउन सूट obviously है. आप 40 Yeah. -40 -50 की बातें कर रहे हो. या सो वो डाउन सूट, स्लीपिंग बैग्स, फिर आपके हार्नेस वगैरह होता है, प्लस यू आर स्पेंडिंग 40 to 45 days इन द माउंटेन.
तो आपको अप एंड डाउन काफ़ी टाइम करना है, तो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ है, इंश्योरेंस लगता है, फिर आप बेस कैंप तक ट्रैक कर रहे हो, तो यू आर हायरिंग अ स्टाफ दैट विल कैरी ऑल योर gear and everything. So there are Sherpa guides with you who guide you on the mountain. Then there is a staff cook who at base camp cooks good food. So a lot goes behind this. And yeah, I तो think मतलब इट्स अ रिच मैन्स स्पोर्ट. I would not say that, but I would say that you have to, it's not just a physical task के भाई training कर ली and you are there. फाइनेंशियल भी है. Yes. So the first preparation is mental preparation because definitely अगर मैं एक पहाड़ के नीचे खड़े रह के सिर्फ सोचूंगा कि अरे मेरे को ये चढ़ना है तो नहीं पॉसिबल है. जब मैं वो फर्स्ट स्टेप लूंगा ओनली देन इट इज पॉसिबल. एंड टू कम बैक अलाइव ऑल्सो यू नीड टू प्रिपेयर वेल. सो फिटनेस, so it's just not physical fitness, it's mental fitness also. So you have to prepare like mentally, physically and money wise. So फाइनेंशियली. yeah, so when we were taught mountaineering in institutes, they say mountaineering is based on 3 M's. So 3 M's of mountaineering, one is your mind, one is your muscle and the third is the money. मनी. Yeah, करेक्ट. so it covers everything, the 3 Yeah. M's of mountaineering. सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, Yeah. ये एक लाइफस्टाइल भी है. Yeah. और इससे फ्यूचर सेट भी होते हैं Yeah. लोगों के. Absolutely. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये इस चीज की शुरुआत कैसे हुई? वो कीड़ा आपको कब काटा? जैसे मुझे भी काटा था एक Yeah. जमाने में Yeah. डायरेक्शन का. Yeah. तो आई एम श्योर आपके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा. I would give the whole credit to my parents. So I was 13 years old, 8th standard में था जी. मैं, 8th grade में. And 90s kid, vacation में क्या करेंगे? So I said वीडियो गेम खेलेंगे फ्रेंड्स के साथ. फिर I was outdoor person, तो मैंने बोला बैडमिंटन है, क्रिकेट है, चेस है, बहुत कुछ है खेलने के लिए. So my parents said कि एक ट्रैक हो रहा है मनाली में अच्छा. एंड आप जाना चाहोगे? सो ज़्यादा नहीं है, 14 दिन का जर्नी है. यहाँ से आप दिल्ली से मनाली, चंद्रखानी पास है जो 10,500 फीट पे लोकेटेड है. एंड मैंने कभी ट्रैक नहीं किया था एंड उस टाइम पे आई एम टॉकिंग 20 years डाउन द लाइन. आई थिंक वो कल्चर भी बहुत नया था. या एंड नॉट मेनी पीपल वर इनटू हाइकिंग Yeah. एंड उनको पता ही नहीं था आउटडोर्स क्या है. और Yeah. हम भी वेरी लिमिटेड, इंटरनेट नहीं था वो टाइम पे, सो पता ही नहीं था क्या हो रहा है. हम पेपर और मैगजीन्स से ही सब कुछ देखते थे. डैड यार ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है. सो मैंने क्यों जाना चाहिए डैड? सो माई डैड सेड कि आप बुक से जैसे नॉलेज लेते हो तो इट विल मेक यू नॉलेजेबल पर्सन, बट nature will convert you into a good human being. Nature has to offer a lot. If you connect to the nature, you will hear the sound and that will connect to your soul. So for that you need to go to the nature. So that struck me hard and I said wow, this sounds something interesting. So मैंने थोड़ा रिसर्च किया मनाली में कैसा टेम्परेचर होता है, क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं. एंड आई सेट फुट एंड एज दे से कि एक बार आप पहाड़ों में जाते हो तो वहीं के हो जाते हो. अच्छा. I went with my heart and soul, but I came back with something missing. And year after year, फिर एक होता है अरे यार वैकेशन में यार कहीं तो जाते हैं. So फिर हर साल एक ट्रैक करते गया and then started growing up with that habit. It became my passion. Passion से फिर कहीं तो एक बोलते हैं ना कि एक ऑब्सेशन हो गया कि यार इस साल तो कहीं जाना ही है. एंड वी स्टे इन द सह्याद्रीज, लाइक वेस्टर्न घाट्स काफ़ी नज़दीक है. सो लोनावाला वगैरह जाते थे तो वाटरफॉल्स में जाना एंड वहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगा. या इट गिव्स यू सुकून, या बहुत सुकून महसूस होने लगा. और हम एक बहुत तेज जिंदगी जी रहे हैं. सो फिटनेस एंड हेल्थ के लिए एक रीजन मिल गया कि यार माउंटेन में जाना है तो फिट होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम होता है. या सो एक फिटनेस की तरफ एक कदम बढ़ने लगा. एंड आई थिंक उसकी वजह से एक दिमाग सेट हो गया कि यार माउंटेनियरिंग अलग अलग वे में बेनिफिट कर रहा है जो हमको पता भी नहीं है. एंड उससे लगाव होने लगा. एंड ऐसे बचपन बीता जब तब समझ में आया कि नहीं, दिस इज माय कॉलिंग एंड मेरे को इसी को फॉलो करना चाहिए. या सो आई थिंक दिस वाज द टाइम जब मेरे को पेरेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया और फिर वो कीड़ा मेरे में अभी तक जारी है. या जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में थॉट आया कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगा और आपने आई एम श्योर पेरेंट्स को बोला ही होगा, Yeah. तो तब क्या रिएक्शन था उनका? डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत डर लगा क्योंकि हम न्यूज़ में काफ़ी बार आते रहता है कि एवरेस्ट पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई. या और उन्होंने थोड़ा पढ़ा भी था कि इतने सब जीरो टेम्परेचर्स होते हैं, प्लस आपको इतने दिन बर्फ़ में चलना है, टेंट वगैरह पिच करना है, प्लस खाना पीना बर्फ़ से मेल्ट करके आपको बनाना है, तो कैसे मैनेज होगा, इतना डिफ़िकल्ट टास्क है. बट समवेयर और दियर उनको ये मतलब एक माइंड था कि हाँ भाई ये बहुत एक्सट्रीम चीज़ है और इसमें बहुत ही कठिनाइयाँ आएंगी. बट उनको ये भी था कि हाँ उनको कॉन्फिडेंस था मुझ पे कि ये कर लेगा.
बट थोड़ा हिचक थी वगैरह। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको श्योरली ये करना है, आप हम्म, क्या सोच रहे हो? हम्म, तो मैंने बोला कि नहीं, डेफिनेटली मुझे ये करना है, क्योंकि एज अ माउंटेनियर एक ड्रीम होता है कि आपके जो करियर है उसके हाईएस्ट पॉइंट तक जाए। या अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा होता, तो एज अ इंजीनियर माय एवरेस्ट वुड हैव बीन समथिंग एल्स, कि मैं कुछ अच्छा आविष्कार करूं जो करेक्ट, लोगों को फायदा दे या उनके काम आए। एज अ डॉक्टर आपका एवरेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाए। सो एवरेस्ट हम सबके लिए है। करेक्ट, वो फिजिकल माउंटेन होना ज़रूरी नहीं है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि एज अ माउंटेनियर मेरे लिए ये एवरेस्ट एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है मेरे खुद के पर्सपेक्टिव से, और ये जर्नी मेरे को करना है। एंड मैं जितना हो सके उतना कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा, बट डेफिनेटली बहुत कुछ लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि नेचर की फोर्सेस आर वेरी पावरफुल। हम्म, उसके अगेंस्ट तो कुछ पॉसिबल नहीं है, बट मैंने बिल्कुल, उनको यह अश्योर किया मैं अपने एंड से 100% डिसिप्लिन और डेडिकेशन से जाऊंगा। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये रिस्क ज़्यादा है या कुछ हो सकता है, तो मैं वहाँ पे स्टेप बैक करूँगा। या एंड आई थिंक उनको वो स्पार्क दिख गया मुझ में कि नहीं, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है और ये पैशन है। तो उन्होंने बोला कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो होने ही वाला है, उसको टाल तो नहीं या सकते, या बट वी विल पुश यू एंड प्रे फॉर यू कि आप सेफली आ जाओ वापस। क्योंकि देखो चस्का भी उन्होंने लगाया था। यस। या अब मनाली भेजने वाले पेरेंट्स ही वही थे। थे। हाँ, या तो आज एवरेस्ट तो जाना ही था, तो उसमें वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। बट हाँ, मतलब बट एज अ पेरेंट आपको एक फील होता है ना कि मनाली तो चलो ठीक है, सब लोग हाँ, जाते हैं। एवरेस्ट इज़ रिस्की या मतलब, या क्योंकि या यू आर राइट, इतनी न्यूज़ आती या हैं या एंड आई एम श्योर इट्स नॉट ईज़ी। या यू तो हैव फेल्ट इट। यस, एब्सोल्युटली। हाँ, तो बहुत डिफिकल्ट वो है। या बट वही था कि उन्होंने एक विजन देखा था, और आई थिंक ये ड्रीम हमने साथ में कहीं ना कहीं देखा था हुँ, कि एक दिन वो ज़रूर करेगा। हुँ। सो जब तक वो टाइम आया तब तक वो काफ़ी ढल चुके थे, क्योंकि एवरेस्ट के पहले मैंने वर्ल्ड का 6th हाईएस्ट माउंटेन चोयू, अच्छा, जो तिब्बत में है, चाइना में, वो मैंने क्लाइम किया। अच्छा। उससे पहले मैंने मानसलू क्लाइम किया। सो आई हैव बीन कंसिस्टेंटली प्रूविंग माई सेल्फ दैट येस आई कैन डू दिस। तो मुझे यही पूछना था आपसे कि जैसे आई लव क्रिकेट, या तो अगर कोई मैच होता है तो मैं हाँ क्रिकेट खेलने के लिए हम सब मिलके एक टर्फ है या सात बंगला में, वो बुक कर लेते हैं राइट, एब्सोल्युटली। और हम वहाँ प्रैक्टिस करते या हैं। या मान लीजिए बैडमिंटन हो या कोई भी स्पोर्ट हो, तो हाँ आज के टाइम पे इजी है कि आप वो हाँ टर्फ हाँ बुक करें या वो जगह पे जाएं, राइट प्रैक्टिस करें राइट और फिर वो कंपटीशन करें। राइट। तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो? इसका आंसर सबसे सिंपल है कि माउंटेनियरिंग का प्रैक्टिस सिर्फ माउंटेन में ही परफेक्ट हो सकता है। हम्म, क्योंकि अगर मैं आज मुंबई में हूँ विच इज़ एट द सी लेवल, तो यहाँ पे वो एल्टीट्यूड क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, हम्म, प्लस वो टेरेन। सो मैंने अपना ट्रेनिंग डिवाइड कर लिया था, लाइक कॉन्स्टेंटली, जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट सह्याद्री है, तो वहाँ पे मैं लॉन्ग हाइक्स करता था टू इंक्रीज माई एंड्योरेंस और मेरा स्टेमिना बढ़ाने के लिए। अच्छा, फिर एल्टीट्यूड से यूज टू होने के लिए, जैसे माइनस टेम्परेचर्स के लिए। सो इंडिया इज ब्लेस्ड, लाइक हम जब भारत को देखें तो हमारे पास लद्दाख है, हमारे पास कश्मीर है, हमारे पास उत्तराखंड या है, हिमाचल प्रदेश टोटली है। एग्री, सो इतना ब्यूटीफुल कंपोजिशन है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में जब हम गए, दार्जिलिंग सिक्किम है, तो हम्म, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पर्वत चोटियाँ हैं जिनको मैंने पहले क्लाइम किया, एंड उन पे मैं काफ़ी कुछ सीखा। एंड हमारे यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूट हैं जो कि माउंटेनियरिंग में आपको सपोर्ट करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, तो मैंने मनाली में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है, ओ, और वहाँ पे मैंने अपना कोर्स किया माउंटेनियरिंग का। एंड वहाँ से मुझे बहुत सारे गुरु मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कि सबसे पहला लेसन मैंने अपना लाइफ का सीखा इस: सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माउंटेनियरिंग। हम्म, इफ यू आर अलाइव टुडे यू कैन क्लाइम 10 मोर माउंटेन्स टुमारो। या सो मेरे जो कोर्स इंस्ट्रक्टर गुरुजी थे, जगत ठाकुर जी, उन्होंने काफ़ी रेस्क्यू मिशंस किए वहाँ पे, रोहतांग पास जो मनाली में स्थित है। हम्म, सो बहुत बार वहाँ पे टूरिस्ट फंस जाते हैं बर्फ़ गिरने की वजह से, या हम्म, खाई में गाड़ियाँ गिर जाती है, या तो वो जाके उनका रेस्क्यू करते थे। तो सर ने अच्छा, बताया कि माउंटेनियरिंग इसके भी काम आती है। सो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने मेरा ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत जितने मेरी जिज्ञासा थी वो सारी दूर की पहाड़ों में रह के। हम्म, एंड आई थिंक उससे एक एक्सपीरियंस इतना बढ़िया हो गया कि पहाड़ों से पहले तो सिर्फ पैशन था हम्म, देख के कि यहाँ पे चढ़ना है, बट वो लगाव बोलते हैं ना, जो वो हम्म, असली लगाव ये कोर्स के दौरान लग गया। अच्छा, डिफिकल्टीज तो बहुत आई होंगी आपको। एब्सोल्युटली, एज आई सेड कि नेचर की फोर्सेस आपके हाथ में नहीं है। सो बियॉन्ड कंट्रोल, जैसे कि आज धूप निकली है तो शायद शाम को बर्फ भी गिर जाए, या कल वेदर अचानक चेंज हो जाए। हम्म, सो ये बहुत बार ऐसे हुआ है पहाड़ों में। कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो जहाँ आपको लगा हो कि यार आज ही मेरा लास्ट डे है, मुझे लगता नहीं कि या शायद मैं बचूं? अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। हम्म, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माउंटेन्स
अच्छा। या वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड इफ यू सर्च, क्योंकि यू नो उसके जो टेरेन है वो काफ़ी एवलांचेस ट्रिगर करते हैं. सो एवलांच इज लाइक यू नो इट विल स्वीप यू अवे. सो मूविंग स्नो जो आपकी तरफ रैपिडली आता है ऑन द स्लोप्स, सो फ्रेश स्नोफॉल जो है वो अनस्टेबल होती है, तो दैट पार्ट स्लाइड्स डाउन. सो मैं क्लाइम कर रहा था एंड यू नो वो हर 15-20 मिनट में आवाज़ आ रहा था, अरे कुछ एवलांच आ रहे, कुछ एवलांच आ रहे हैं. एंड उस माउंटेन पे मैंने अन्नपूर्णा को समिट किया एंड मैं कैंप 4 पे आ गया. अब जब मैं कैंप 4 पे आ गया, रात को 12 बजे अचानक मुझे आँखों में कुछ झंझनाहट सी होने लगी अच्छा। एंड सडनली जब मैं उठा मुझे सब कुछ ब्लर दिख रहा है एंड आई लॉस्ट माय विजन ड्यू टू स्नो ब्लाइंडनेस. ओह! फ्रेश स्नोफॉल पे रिफ्लेक्ट हुई यूवी रेस एंड आई कुडंट सी एनीथिंग. सुबह में उठा, उतरने का टाइम था और वो सबसे डेंजरस सेक्शन है माउंट अन्नपूर्णा पे जहाँ पे एवलांचेस सबसे ज़्यादा आती है, कैंप 3 से कैंप 4 के बीच में. ओह! सो आई हैव अ वीडियो आल्सो ऑफ दैट. जब वो सेक्शन पे उतर रहा था आई हैड जस्ट 30% विजन, मुझे सब धुंधला दिख रहा था एंड मेरे दिमाग में सिर्फ यू नो दिल में दिमाग में एक ही था, भगवान प्लीज यहाँ से सही सलामत वापस ले जाओ नीचे वरना. उतर आना। हाँ मतलब इतने बड़े बड़े एवलांचेस देखे जब चढ़ रहे थे, तब एक एवलांच तो हमको छू के गया, जिसकी जो वीडियो है मैं चल रहा हूँ एंड जस्ट यहाँ यहाँ से बोलते हैं ना कि ऐसे 50-60 मीटर के दायरे में से वो ऐसे बाप छू रे! के गया एंड इट इज लाइक अ ह्यूज थंडर साउंड इट मेक्स. एंड सबमिट तो कर लिया है बट यू नो हम बोलते हैं कि अ सेफ क्लाइंब इज व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बेस कैंप एंड सही सलामत जब आप बेस कम कैंप पे बैक। वापस कम बैक. या या बिकॉज जाना तो ऑप्शनल है, बीच में से भी वापस आ सकते हो बट रिटर्न आना इज कंपलसरी. सो दैट इज अ सक्सेसफुल समिट. सो मैंने सोचा भगवान प्लीज आज बचा लो जैसे भी हो एंड यू नो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और वो स्टीप सेक्शन है. वो पॉइंट पे मुझे ऐसे लगा कि यू नो कुछ भी हो सकता है बट सेफ एंड साउंड विदाउट एनी एवलांच मैं कैंप 1 तक पहुंच गया. एंड मेरे जो शेरपा थे मिंगमा दाई, मैंने उनको बोला दाई आज हम यहीं पे रुकेंगे, बेस कैंप नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और अंधेरा होने वाला है एंड ये बेटर है कल सुबह हम उतर जाएंगे. सो सेफली नेक्स्ट डे वी रीच्ड बैक एंड आई थिंक द माउंटेन गॉड्स गिव मी दैट पॉजिटिव पुश एंड एनर्जी. सो दैट वाज वन इंसिडेंट वेयर आई फील के यू नो लाइफ से मतलब मरते मरते बचाए. ऑब्वियसली मतलब या यू बिलीव इन गॉड अ लॉट. यस, यस एब्सोल्युटली. एंड डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? आई वुड शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट. या मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो मैनिफेस्टेशन से ही शुरू हुई. ओके। जो फर्स्ट माउंटेन मैंने 2017 में क्लाइम किया, माउंट मानसलू. अब मुझे वो क्लाइम करना था, उसका कुछ कॉस्ट हो रहा था 12 से 15 लाख रुपए ओह! एंड मैंने मेरी सेविंग से कुछ 3 से 4 लाख रुपए जमा बचा के रखे थे क्लाइम करने के लिए. अब मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए ब्रांड्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया. 4 महीने के अंदर आई गॉट रिजेक्टेड बाय 182 ब्रांड्स. अब कल मुझे निकलना है एंड मेरे हाथ में पैसे नहीं है. अच्छा। आफ्टर रिजेक्शन कोई कोई ब्रांच के ऑफिसेस में बैठा एक वीक के लिए, सर आज अवेलेबल नहीं, आप कल आना, मार्केटिंग टीम इज बिजी, आप कल आना. ऐसे करते करते एक वीक हो गया एंड फाइनली 7th डे आई गेट अ मैसेज कि वी आर नॉट डूइंग एनी स्पॉन्सरशिप्स दिस ईयर, सो यू कैन ट्राई मे बी नेक्स्ट ईयर. सो ऐसे कर एंड आई हैड टू मैनेज माई ट्रेनिंग ऑल्सो और दोनों चल रहा था, हुँ, स्पॉन्सरशिप भी ट्राई करें एंड बस मुझे ऐसे लगा नहीं हो पाएगा इस साल, इतने हुँ, साल भर की मेहनत इस साल के लिए तो पॉसिबल नहीं है, अब वापस मेहनत करेंगे अगले साल के लिए. हुँ, और आई गेट अ कॉल, सो नवनीत फाउंडेशन से मुझे कॉल आया, द नवनीत पब्लिकेशन, एंड ओके। उन्होंने बोला कि वी जस्ट सीन योर फाइल एंड वी वुड लव टू स्पॉन्सर यू. हम आपको पूरे स्पॉन्सरशिप नहीं दे पाएंगे बट एक स्मॉल अमाउंट हमारी तरफ से हम देना हुँ, चाहेंगे. एंड इमीडिएटली मैंने मेरी फ़्लाइट भी बुक नहीं की थी, फिर मैंने फ़्लाइट बुक की. आई गैदर्ड दैट अमाउंट, नेक्स्ट डे में निकला एंड सक्सेसफुली आई क्लाइंब माउंट मानसलू. ओह! एंड आफ्टर दैट 2017 में ये हुआ. आफ्टर दैट टिल लास्ट ईयर, सो 2023 तक मैंने एक भी साल ऐसा नहीं गया कि मैं माउंटेन क्लाइंब नहीं कर पाया, पता नहीं कैसे. हुँ, मैं बस सोचता हूँ ये माउंटेन मुझे इस साल क्लाइंब करना है, मैं उसका एक फिगर बनाता हूँ या इतना एक्सपेंस होगा एंड इट गोज इन लैक्स, हर एक माउंटेन गोज इन लैक्स. हुँ, पता नहीं कैसे होता है, क्या होता बट है, इट हैपेंस। बट इट हैपेंस. दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एग्जैक्टली. इट एक्चुअली वर्क्स। यस एब्सोल्युटली. या एंड आई फील सबको करना चाहिए मैनिफेस्ट। अच्छी या चीज़ें मैनिफेस्ट एंड करो। इट्स नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन बट हाउ डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स योर गोल. या मैनिफेस्टेशन तो आपने कर लिया या बट उसके लिए आपको एफर्ट्स कर्म डालने या वो पड़ेंगे. करना ही या पड़ेगा। सो जिस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे ये माउंटेन क्लाइंब करना है, उसी मोमेंट में एक प्रण लेता हूँ कि इस माउंटेन को पूरा करने के लिए जो भी लगेगा वो मैं अपना 100% से ज़्यादा दूंगा.
तो मैं सिर्फ वो मॉनेटरी के लिए नहीं रुकता कि यार अपने आप हो जाएगा। मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं वो माउंटेन के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वहाँ पे, ये कहाँ पे लोकेटेड है हुँ, टोपोग्राफिकली, हुँ, उसमें क्या-क्या क्रक्स पार्ट है, जो डिफिकल्ट पार्ट है, हुँ। उसको एनालाइज़ करने लगता हूँ। जूने वीडियोज़ हैं, अब तो यूट्यूब इज़ अ बिग हाँ, तो सोर्स। आप देख सकते हो उस पे एग्ज़ैक्टली। या सो उसका मैप मैं गूगल मैप्स पे देख लेता हूँ, टेरेन कैसा है, जब मैं जाऊँगा तब वेदर क्या हो सकता है। हुँ, तो ये सारी प्लानिंग आउट ऑफ द माइंड हो जाती है। एंड देन आई गेट सो इन्वॉल्व्ड कि आई ईट माउंटेन्स, ड्रिंक माउंटेन, स्लीप माउंटेन। सो वो हुँ, माउंटेन के ही अराउंड मेरी जर्नी रिवॉल्व होती है। हुँ। सो आई थिंक या वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो विथ मैनिफेस्टेशन आपको एक बैलेंस रखना है कि आप उसको आपकी जर्नी को उस वे में प्रोजेक्ट करो। करेक्ट। या सो वो अपने आप आएगा फॉर श्योर। या वो तो Yeah. होता ही है As फिर। they say, the mountains are calling only when if you desire. So I did that part. तो यू बीन स्टेइंग सो मच ऑन द माउंटेन्स आप आई थिंक काफ़ी टाइम आपने Yeah, स्पेंड किया है, आप yeah, कर ही रहे हैं। yeah. तो कोई ऐसा मिसहैप या कोई ऐसी ट्रेजेडी आपने देखी हो और उस ट्रेजेडी ने अगर आपको पर्सनली अफेक्ट किया हो? बहुत बहुत कुछ देखा है मैंने, डेड बॉडीज देखी है माउंटेन पे। इनफैक्ट जब मैं एवरेस्ट और लोत्से कर रहा था, तो किसी भी इंडियन ने किया नहीं था एवरेस्ट लोत्से। एंड मैं फर्स्ट होने वाला था, तो मैंने एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं लोत्से के लिए जा रहा था। माउंट लोत्से इज़ द वर्ल्ड्स 4th हाईएस्ट माउंटेन, और ओके। इट इज़ वेरी बहुत नज़दीक है एवरेस्ट से, हुँ, एक कैंप की दूरी है। जब मैं लोत्से के टॉप पे पहुंचने वाला था, उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले मैंने एक पर्सन की बॉडी देखी वहाँ, रोप्स के बीच में एंटेंगल थी। एंड वो पर्सन आई थिंक 4-5 साल पहले गुजर गए होंगे वहीं पे। अच्छा। एंड बट बिकॉज ठंड ज़्यादा होती है, तो वो काफ़ी उसके फ्लैश वगैरह पूरी तरह से डिग्रेड नहीं हुए थे। सो मेरे को फिंगर्स पे आई कुड सी फ्लैश, मेरे को आंखें दिखने लगी। उनकी आँखें भी अभी तक नहीं वो हुई थी, प्लस उनके सूट फटे हुए, उस पे रॉक पड़े हुए हैं। सो एक सेकंड के लिए मेरा ब्रेन फ्रीज़ हो गया कि व्हाट इफ ये मेरे साथ हो या मैं वहाँ पे हूँ, मेरे साथ भी ये हो सकता है। एंड एक कदम लेने में मुश्किल होने लगी कि यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब थोड़ा ही बचा है, लेकिन ऐसा कुछ हो गया तो इसके हुँ, साथ क्या हुआ होगा, हुँ, कैसे हुआ होगा? हुँ, यहाँ तक पहुँच के तो वो टाइम पे एक हिट ऐसा लगा कि रियलिटी चेक जो हम बोलते हैं, वो हुँ, होने लगा। बट फिर कहीं पे ये आया कि नहीं, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, एंड भले डेस्टिनी में जो लिखा होगा, बट अभी आई थिंक सब कुछ सही जा रहा है, तो मुझे फ्लो के साथ जाना चाहिए। एंड इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। एंड अगर मैंने ये कर लिया, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि फर्स्ट माउंटेनियर जिसने एवरेस्ट लोत्से एक साथ क्लाइंब किया। हुँ, सो वो करना है और एक एग्जाम्पल सेट करना है। आज काफ़ी माउंटेनियर्स आफ्टर दैट वो एक बेंचमार्क सेट हो गया, तो वो करते जा रहे हैं अब एवरेस्ट। और ये हुँ, पहले उनको लगा था ये नहीं हो पाएगा, बट आज जस्ट बिकॉज मैंने कर लिया, उनको लगा नहीं अब ये मुमकिन है, और काफ़ी लोगों ने उसके बाद ट्राई करके कर लिया। हुँ, सो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मैंने अपना लिमिट पुश किया वहाँ पे, या एंड कर लिया मैंने वो। तो वो टाइम पे मुझे एक ऐसे रियलिटी चेक मिला, और मुझे ऐसे लगा कि कि कुछ हाँ, भी, मतलब कुछ हाँ, भी हो सकता कुछ है भी हो और सकता है। जब फर्स्ट मैसेज आया या न्यूज़ आई कि आपको सम्मानित किया जाएगा या नेशनल अवार्ड से, या तो तब क्या चल रहा था माइंड में? जब मुझे कॉल आया कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, तेंजिंग नोर्गे जो नाम है हुँ, राष्ट्रपति अवार्ड का। और बहुत ही अच्छा फीलिंग था, लाइक आंसू रुक नहीं रहे थे हुँ, कि इतने सालों की मेहनत, और अब नेशनल अवार्ड बहुत ही मायने रखता है हर हुँ, फील्ड में। हुँ, इफ़ आई से स्पोर्ट्समैन एंड माउंटेनियरिंग में। बिल्कुल। सो उस टाइम पे नमनेस हो गई, एंड जस्ट हम लोग लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, एंड उस साल लॉकडाउन की वजह से वो कंडक्ट नहीं हुआ था, बट इस साल फर्स्ट टाइम था आफ्टर लॉकडाउन। सो काफ़ी ज़्यादा इमोशन था लॉकडाउन का भी, क्योंकि जब आप इतना ट्रैवल करते हो, एंड लॉकडाउन में हम लोग सब एक जगह पे ये थे, एंड उसके बाद एक मोटिवेशन मिल गया। हुँ, और जब मैं अन्नपूर्णा के लिए जाने ही वाला था, सो इट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, अ मोटिवेशन। और माता-पिता के लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनको जब बता रहा था कि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है फॉर व्हाट आई बिलीव्ड इन एंड व्हाट दे बिलीव्ड इन। हुँ, सो उनको भी गर्व से उन्होंने लाइक गले लगा लिया, एंड उनके फर्स्ट टाइम एक मैंने मुस्कान अलग ही देखी। हुँ, ऐसे तो हम रोज़ हँसते हैं, हाँ, पर वो जो मुस्कान ऑफ प्राइड होती है ना, वो अलग ही थी। अलग ही है। या बट एक ये भी था कि बिकॉज़ ऑफ द जस्ट लॉकडाउन खुला था, तो ये सारी सेरेमनी ऑनलाइन हुई।
ओह! या ओके। बट आई एम श्योर कि आगे जाके अगर ऐसा कुछ और चांस होगा तो आई वुड बी एबल टू एक्सपीरियंस द राष्ट्रपति भवन हाँ, एंड वहाँ द जाके होल, या एग्जैक्टली, एंड आई वुड बी एबल टू टेक माय मॉम डैड वहाँ पे जब वो बैठेंगे राष्ट्रपति भवन में, तब वो फीलिंग अलग ही होगी फॉर श्योर। एंड बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल। बढ़ते रहेंगे तो वो भी दिन जल्दी आएगा, आएगा 100%। मैनिफेस्टिंग हाँ, हाँ, दैट। 100%। एज़ अ ह्यूमन क्या चेंज हुआ अवार्ड के बाद? अवार्ड के बाद एज अ ह्यूमन आई वुड से कि एक नज़रिया बदल गया चीज़ों को देखने का, कि पोटेंशियल तो बहुत है और हार्ड वर्क करना है। जर्नी हमने रास्ता पकड़ लिया है, राह पकड़ ली है, बट उस पे चलने के लिए कठिनाई बढ़ गई है अभी। हुँ। बट वो कठिनाई से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, आज नहीं तो कल होगा ज़रूर। मैंने इसलिए पूछा बिकॉज़ अधिकतर होता क्या है कि जब आप कोई एक ऐसा बेंचमार्क या हासिल कर लेते या हो, तो ईगो आ जाता है, या या काफ़ी चीज़ें आ या जाती हैं। या मैंने बहुत लोग चेंज होते हुए या देखे हैं। या तो क्या आप में भी ईगो थोड़ा आ गया था? जब उसके बाद आप गए? I would say not, but basically mountains का first learning ये है कि you are very small हुँ, and they are very big, हुँ, but still they are there. या मतलब पहाड़ हमसे काफी सालों पहले से है बिल्कुल, और हमसे ज्यादा वो रहेंगे, बिल्कुल। हम आके चले जाएंगे, बट हुँ, वो सालों साल जन्मों जन्म रहेंगे। हुँ, So they are there and they are, as we say, immovable, या, but still they move. या, सो मैंने जो कुछ भी लाइफ में सीखा है ना, उन्हीं से सीखा है। तो आई थिंक कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझ में ईगो ये हो गया है, या हुँ, आई हैड ऑलवेज थॉट दैट कि मुझे सिर्फ अपने कर्म करने हैं। मुझे पता है कि माउंटेनियरिंग मेरा फोर्टे है, मुझे वो बहुत पसंद है, नेचर हुँ, के पास रहना, हुँ। नेचर के साथ रहना। तो बस मैं उसी में काम करते रहता हूँ, उसी में खुश रहता हूँ कि आज घर से चले, एक ट्रैक किया, नदी, पहाड़ देखे, वापस आ गए, बस सुकून से सो गए, खुश। मेरे को लगता है कि थोड़ा हमें आई एम श्योर द ऑडियंस विल वांट टू नो कि ये जो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, या या एक तो फाइनेंशियल प्रोसेस या है, या एक मेंटल है या और एक मसल है। या ये या 3 एम्स हैं। या तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दीज़ 3 एम्स कि या अगर किसी को अचीव करना है तो या क्या कर सकते हैं वो? या सो फर्स्ट, सबसे पहला एम है माइंड। कोई भी एक्सपीडिशन जाने से पहले हमको समझना ज़रूरी है कि उसमें कितना खतरा है, हुँ, कहाँ तक खतरा है, और उस खतरे को कैसे टाला जाए। प्लस एक माइंडसेट होता है कि आप पहले विजुअलाइज करें आपकी जर्नी कैसी होगी, उसमें क्या क्या रुकावटें आएंगी, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके लिए अभी से आपको क्या ट्रेनिंग लेनी है। हुँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है माउंटेन्स में, कि बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेबल आ जाता है। हुँ, तो आपको इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस आपके एक्सपीरियंस से आपको रेडीनेस होना चाहिए कि हुँ, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। सो वो माइंड के बारे में है। उसके बाद मसल, डेफिनेटली हुँ, आपको ट्रेनिंग करनी है, आपके बॉडी को फिट बनाना है कि आप आपके स्टैमिना पे, एंड्योरेंस पे काम करें, ताकि माउंटेन्स में आपका काम आसान हो जाए। हुँ, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हर एक पॉइंट के बाद ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, क्योंकि ओह! प्रेशर बढ़ने लगता है। हुँ, तो आपकी बॉडी उतना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जबकि अब मान के चलो कि एवरेस्ट के टॉप पे आप सिर्फ 30% ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। ओह! सो इसीलिए लोग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं, ताकि वो दिक्कत ना हो। हर 2 कदम के बाद बॉडी थकने लगती है, हाफने लगती है। तो उसके लिए यहाँ से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो आप आपका VO2 मैक्स जो हम बोलते हैं वो इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं, ताकि आपकी बॉडी लो ऑक्सीजन में ज़्यादा फंक्शन कर पाए। हुँ, तो मसल के लिए आपको ट्रेनिंग करनी है डेफिनेटली। लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ तो मैं कम से कम हर एक्सपीडिशन के पहले उसकी पहले स्टडी करता हूँ, माइंड को प्रिपेयर करता हूँ। उसके बेसिस पे मैं अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता हूँ। हर माउंटेन को एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम लगता है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, ओके, बट एक अलग प्रोग्राम बनता है। एंड 6 से 7 घंटे मैं दिन में ट्रेन करता हूँ। मेरी शुरुआत सुबह 4 बजे हो जाती है। 4 बजे उठ के मैं मेडिटेशन करता हूँ, हुँ, ताकि वो मेंटल पीस बना रहे, और हुँ, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है हुँ, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अलाइन हो जाता है। हुँ, उसके बाद योगा करता हूँ, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, बॉडी इंजरी से बची रहे। हुँ, एंड योगा हैज हेल्प मी अ लॉट। ओके, उसके बाद मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये सबको एक कंबाइन करके एक शेड्यूल बनाता हूँ। फिर जिम में भी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, ताकि लेग्स, कोर वगैरह पे वर्कआउट हो हुँ, सके। सो एक अलग ही कस्टमाइज प्लान बन जाता है हर माउंटेन से पहले। ओके, सो दैट हेल्प्स इन मसल एंड डेफिनेटली मनी।
सो हर एक माउंटेन का एक अलग अमाउंट होता है, जैसे कि फॉर एवरेस्ट इट इज 35 to 40 lakhs, तो कोई माउंटेन अप्रोक्सीमेटली 15 लाख या 20 लाख तक अच्छा, या चार्ज होता है। मतलब ये सो सब लैक्स में ही है। या 8000 जो है वर्ल्ड के 8000 मीटर के पीक, वो सारे तो लैक्स में ही है। बाकी जो 6000 और 7000 मीटर के पीक हैं, वो कुछ मान के चलो कि 50-60,000 या 1 लाख 2 लाख में भी हो सकते हैं। तो इसमें रहना, खाना, पीना, आना-जाना सब कैलकुलेटेड है। सब कैलकुलेट या सो जब ओके। आप एक जर्नी प्लान करते हो तो उसमें आपका लॉजिस्टिक्स जो सबसे बड़ा पार्ट है वो आ गया, हुँ, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, प्लस आपके इक्विपमेंट्स आ गए। हुँ। सो ये इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स इंपोर्टेड है। सो ये अदर कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ओह! तो इंपोर्ट ड्यूटी हैवी है, तो ये इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है? इंडिया में इंपोर्टेड अवेलेबल है, बट हुँ, मेड इन इंडिया बहुत कम, हार्डली मैं बोलूँ तो एक या दो ब्रांड होगी जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, ओके, और वो भी रेयर। ओके। एंड इंडिया में काफ़ी ऐसे इक्विपमेंट्स है जो तो अवेलेबल भी नहीं है अभी तक। जैसे इफ़ यू मस्ट हैव हर्ड, नॉर्थ फेस एक ब्रांड है। करेक्ट, ऑफ कोर्स। सो इट इज़ वेरी फेमस एंड वर्ल्ड वाइड, बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है अभी तक। अच्छा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउटडोर ब्रांड्स। सो धीरे धीरे आई एम श्योर कि पीपल आर गेटिंग कंफर्टेबल एंड दैट ब्रांड इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, हुँ, बट स्टिल जब ये अवेलेबल नहीं है तो हमको, जब फ्रेंड्स को यूएस से आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, हम उनको बोल देते हैं भैया एक जैकेट ले आना नॉर्थ फेस की, हुँ, या हुँ। शूज़ ले आना। आई फ़ील ये मेड इन इंडिया होना चाहिए, आप ही शुरू करो कुछ। इसी इंटेंशन से मैंने एक अपना स्टोर शुरू किया हुआ है। ओके, मुंबई में मुलुंड में क्लाइंब ऑन एडवेंचर स्टोर, ओके, जहाँ पे हम गियर बेचते भी हैं और रेंट भी करते हैं। ओके। सो दीज गियर आर वेरी एक्सपेंसिव, सो अगर किसी को ठंडी के लिए जैकेट्स चाहिए, शूज़ चाहिए, और उनको इतना पैसा नहीं डालना, तो दे कैन रेंट इट आउट। ये कंसेप्ट मैंने 3 साल पहले शुरू दिस किया इज़ था। वेरी कूल। या या, एंड बहुत कम मिनिमल कॉस्ट में वी आर ट्राइंग कि हम लोगों को ये प्रोवाइड कर सकें। एंड दैट्स आगे ऑल। जाके यस होपफुली सब सही रहा तो अपना एक ब्रांड भी शुरू करेंगे, या, बिल्कुल। जिसमें यस वील मैन्युफैक्चर थिंग्स एंड 100% या, मेड इन इंडिया इन होगा। इंडिया, फॉर इंडिया। यस फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर मोदी जी विल आल्सो सपोर्ट अस। डेफिनेटली यस। दिस इज़ वेरी कूल। मतलब ये 3 एम्स के बिना यू आर सेइंग कि इट्स यस। डिफिकल्ट। एंड पहले कैसे होता था कि माउंटेनियरिंग के अराउंड इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी टू जनरेट या, रेवेन्यू। या। जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ने का फैसला किया फॉर माउंटेनियरिंग, तब बहुत कम ऑप्शंस थे। तो तब मैं गाइड करता था एज अ माउंटेन गाइड। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अंडरस्टैंड किया कि आप ऑर्गेनाइजर भी बन सकते हो, तो मैंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। हुँ, तो मैं लोगों को ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करता था, उनको लेके हुँ, जाता था। हुँ, सो एंड टू एंड सर्विसेज देने लगा मैं। तो आपका ट्रैवल मैंने ऑर्गेनाइज किया, फिर आपका होटल स्टे, उसके बाद आपका ग्रुप का टेंट एकोमोडेशन, हुँ। आई डाइनिंग। थिंक बीइंग 90s के किड्स या तब ये कल्चर स्टार्ट हुआ ही था। हुआ ही था, या, एग्जैक्टली। ट्रैक्स पे जाना, एग्जैक्टली कैंपिंग अरेंज कैंपिंग के करना। लिए या, या एंड उसके बाद जब मैंने देखा कि और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैंने अपना एक स्टोर स्टार्ट कर दिया। सो ये स्टोर वाज अ गुड आइडिया कि उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। हुँ, एंड धीरे धीरे देर आर मोर ऑप्शंस कमिंग इन, लाइक आई वुड से देर आर नाउ रॉक क्लाइंबिंग जिम्स हियर विच आर हुँ। हैपनिंग। तो बहुत सारे डिफरेंट या, वेज में यू कैन work and you can monetize and earn, because earning a living out of this is very important. या। It is an expensive sport, पैसा तो काफ़ी लग रहा है, हुँ, बट वो रिटर्न्स भी लाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। सो बहुत कम पीपल इसको एक, बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रीम स्पॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग ज़्यादा डरते हैं कि अरे इसमें कुछ हो जाएगा। अब मान लो कि आप गए एक्सपीडिशन पे, हाथ पैर टूट गए, तो what will you do? You या, should have an alternative option and an alternative career also. या। You cannot completely बट dependent on आई this. फ़ील केवल आई फ़ील कि ये तो कोई भी स्पोर्ट में होगा ना, एग्जैक्टली बट कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व इज मोर, हाँ, इसमें ज़्यादा बिकॉज है। अनप्रिडिक्टेबल है। हर कदम पे खतरा है, हुँ। एंड आपको पता नहीं कब क्या हो जाए, आपकी गलती ना भी या, हो। या। सो हम ज्यादातर दिमाग में ये पकड़ के चलते हैं कि हमने जितना मेहनत किया है वो सिर्फ 5% to 10% है, बाकी 90% इज ऑन आर डेस्टिनी एंड लक। या, मदर नेचर, द एग्जैक्टली, मोस्ट पावरफुल एंड पावरफुल। या अनप्रेडिक्टेबल फोर्स। या आई आई रियली वांट टू नो दिस। आई एम वेरी क्यूरियस। आपने इतने माउंटेन्स क्लाइंब किए हैं, या व्हाई नॉट कैलाश पर्वत? again, so Kailash Parvat is one of the holy mountains. जी, It is declared as a holy mountain. अभी जी। तो खैर परमिट भी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से। एंड इनफैक्ट इस साल इंडियंस को माउंट कैलाश की यात्रा होती है। सो हुँ, कैलाश मानसरोवर लेक्स जो हैं हुँ, उनकी यात्रा परिक्रमा होती है। हुँ, तो 5 साल बाद, लॉकडाउन के बाद, अब इंडियंस को इस साल परमिशन मिलेगी टू गो टू कैलाश एंड वर्शिप, बिकॉज हम हुँ। उनको एक होली माउंटेन मानते हैं और 100%, शिवा का घर मानते हैं। तो 100%। लॉर्ड शिव का घर हम बोलते हैं कैलाश में है। एंड पहले काफ़ी माउंटेनियर्स ने ट्राई किया,
टू क्लाइम कैलाश, बट पता नहीं मिस्टीरियस बातें निकली कि वो क्लाइमेबल नहीं है, क्लाइम नहीं हो पा रहा है। जैसे क्लाइम करने जा रहे हैं, अचानक वेदर चेंज हो रहा है, जबकि वो ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं है। अब मान लो कैलाश इज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 19,000 फीट, 19,000 प्लस फीट, एंड एवरेस्ट इज 29,000 फीट, ओह, but Everest is scaled by 8,000 to 8,500 mountaineers, whereas Kailash has not been scaled by even a single mountaineer. So that was a very big mystery which has not been solved yet. And they say कि एक टीम काफ़ी नज़दीक थी समिट के, एंड जब वो समिट के पास पहुंचने ही वाली थी, अचानक से बादल आ गए एंड हवाएं चलने लगी और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। एंड फिर बिकॉज ऑफ द फोर्सेस दे हैड टू टर्न बैक, और जैसे ही उन्होंने रिट्रीट करना शुरू किया, एवरीथिंग वाज या बैक टू नॉर्मल। आफ्टर कमिंग बैक 100-150 मीटर्स सब कुछ नॉर्मल हो गया। सो हम उसको क्या बोलेंगे पता नहीं, बट येस देयर इज समथिंग दैट इज देयर। या ऑफ कोर्स। एंड इनफैक्ट पीपल से कि जो कैलाश के नियर विसिनिटी में रहते हैं, मॉन्क्स हो गए या उनकी एजिंग बहुत फास्ट होती है। सो मान लो कि अगर आपका नाखून जितना एक हफ्ते में ग्रो होता है, वो 3 दिन या 2 दिन में ही ग्रो होने लग जाएगा। अच्छा, और इवन आपका हेयर एंड स्किन, दैट इज वाई यू स्टार्ट एजिंग वेरी फास्ट, रिंकल्स डेवलप होती तो है। इज देयर एनी रीजन फॉर दिस? स्टिल पीपल आर फाइंडिंग इट, इट्स अ मिस्टीरियस थिंग, बट स्टिल पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ओह, एंड अभी तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम कैलाश के बिल्कुल आगे नंदी पर्वत बोलते हैं हम हम्म, जिसको, तो वहाँ पे अभी बहुत सालों बाद एक इंस्क्रिप्शन जैसा कुछ देखने में आ रहा है कि वहाँ पे बिकॉज ऑफ द इरोजन नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल कि शायद कुछ था वहाँ पे। सो वहाँ पे अच्छा, यू सी ऑन द टॉप एक बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर जैसा कुछ बना हुआ है। सो अभी साइंटिस्ट उस पे वर्क करके, जियोलॉजिस्ट एंड एवरीबडी दे आर ट्राइंग टू एनालाइज कि कि क्या ये लिखा क्या हुआ हो है? सकता है। या सो अभी इस पे चल रहा है रिसर्च एंड एवरीथिंग, बट यस इट्स अ वेरी बिग मिस्ट्री डेफिनेटली। हम्म, इसके लिए हर माउंटेनियर उस माउंटेन को रिस्पेक्ट भी करता है, वर्शिप भी करता है। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। आई एम श्योर कि इन द नियर फ्यूचर सम डे के हमको पता चले कि ये क्या रहस्य है इस माउंटेन के ना क्लाइम होने के या पीछे। बिकॉज़ हम हमेशा सुनते हैं ना कि यहाँ लोग क्लाइम कर रहे हैं, वहाँ समिट कर रहे यस, हैं यस, एंड व्हाई नॉट कैलाश पर्वत? या, तो कभी ज़िक्र में नहीं आया वो कि यहाँ या, पे हुआ है। इट इज़ अ वेरी मिस्टीरियस थिंग या एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टोरीज लिखी हैं इस पे, काफ़ी सारी बुक्स हैं। हुँ, जैसे कि मैं, चलो इंडियंस का एक इमोशन है हम बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स। बट रशियंस, पॉलिश क्लाइंबर्स, उन्होंने भी इसके ऊपर किताबें लिखी हैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, जब वो कैलाश गए और जब वो क्लाइंब नहीं कर पाए। अच्छा, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं उसमें, काफ़ी उन्होंने डेप्थ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो क्लाइंब कर रहे थे तब क्या हुआ। एंड वो पढ़ने के बाद वाकई ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो फोर्स है बिल्कुल। एंड कुछ तो है। सो फिर उस आउट ऑफ रिस्पेक्ट गवर्नमेंट ने भी उसको मान लिया कि नहीं, कुछ तो है और ये माउंटेन स्पेशल है, तो उसकी सिर्फ यात्रा आप कर सकते हो बट उसको क्लाइंब अब नहीं कर सकते। ओह! या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, जब मैं 17 साल का था, तो मैं कार्टून नेटवर्क में बिज़ी था और ऑब्वियसली मैं स्कूल तो जाता था और तब नया-नया मैकडॉनल्ड्स स्टार्ट हुआ था। तो हम सब दोस्त लोग मिलके मैकडॉनल्ड्स भी जाते थे। आपके नेफ्यू ने क्यों और कब और कैसे ये किया? ऐसा क्या हुआ? मेरे भांजे को जैसे कि मैं इंट्रोड्यूस हुआ माउंटेन से, सो मेरी जीजाजी और मेरे बहन ने बोला कि आप जाते रहते हो ट्रैक्स वगैरह पे, तो हुँ, आप इसको भी ले जाओ हुँ, वेकेशंस में, सो ये थोड़ा कुछ सीखेगा। तो मैं उसको ले जाने लगा एंड काफ़ी यंग एज से वो मेरे साथ ट्रैक करने लगा। हुँ। सो 16 साल का था वो, मैं उसको एवरेस्ट बेस कैंप ले गया। ओह! एंड जब हम एवरेस्ट बेस कैंप गए 2022 में, तब उसने मुझे बोला, मामा यहाँ पहुँच के मेरे को इतनी खुशी हो रही है, तो एवरेस्ट के टॉप पे कैसा लगता होगा? आपने इसे को क्लाइंब किया तो आपको कैसी फीलिंग आई? आपको क्या महसूस हुँ, हुआ? तो मैंने ऐसे ही मज़ाक में कह दिया कि मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता, मैं तो बोलूँगा अरे अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ऑसम फीलिंग थी। बट वो समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। या तो हमने ट्रैक कंप्लीट किया, हम वापस आ गए एंड वो अपनी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अचानक से जनवरी, हम लोग ये गए थे मार्च अप्रैल में, हुँ, एंड वो पूरा साल उसने मेहनत की, ट्रेनिंग की। एंड जनवरी में मेरे दीदी जीजा जी घर पे आए एंड उन्होंने बोला कि मिथिल को एवरेस्ट क्लाइंब करना है। एंड पहले तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, मैं बोला आर यू श्योर, लाइक सीरियस? हुँ, तो बोला हाँ, आई एम श्योर और मुझे करना है, और मैं ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया वो कर रहा था। एंड मैंने बोला ठीक है। फिर उसने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दी उस साल एंड हम लोग अप्रैल में चल पड़े एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। सो
आई थिंक वो एक मोटिवेशन उसमें पहले से ही था एंड उसने अपना पाथ फाइंड कर लिया था. सो वो पाथ फाइंड करने के बाद चीज़ें काफ़ी इजी हो गई एंड समवेयर और द अदर आई फाउंड हिम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स कि वो हमेशा से नेचर के काफ़ी करीब था. तो उसको नेचर से लगाव था, वो कैलिस्थेनिक्स करता है तो फिटनेस के प्रति या उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था. सो एक ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आप किस चीज़ से जुड़े हुए हैं शुरुआत से ही. या सो उसने काफ़ी एक अर्ली एज से ये सफ़र शुरू कर दिया था एंड आगे जाके वो सफ़र में जब आगे आगे देखते गया तो उसकी रुचि और बढ़ गई एंड डेफिनेटली एवरेस्ट वाज अल्टीमेट गोल. सो उसने वो हासिल कर and लिया. he did it. Yeah, या it's या I mean, it is so interesting and outstanding या because nowadays kids they want to party, they want to do clubbing या and chill. या ठीक है, सबका अपना अपना वो एक या होता है, कुछ खराब नहीं है. बट मैं सोचता हूँ कि एक ऐसे बच्चे के माइंड में क्या चलता होगा कि जो 17 का है और वो ये बोल रहा है कि मुझे माउंट एवरेस्ट नहीं, ही फाउंड द राइट बैलेंस क्योंकि डेफिनेटली इजी नहीं था. उसने अपना एजुकेशन भी बैलेंस किया किया. प्लस अपना पैशन भी या बैलेंस किया या एंड वो इतना इंक्लाइन था अपने गोल के तरफ कि उसको पता था कि ये गोल अचीव करना इजी नहीं है. डेफिनेटली जब मैंने ये डिसीजन लिया आई वॉज मच ओल्डर कि मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है बट उसका माइंडसेट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइन एंड डेफिनेटली इट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन. उसको मैंने भी सपोर्ट किया, मेरे जीजा जी ने भी सपोर्ट किया, दीदी ने भी या सपोर्ट या किया. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. उसके दिमाग में ये फिक्स था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी परेशानी आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, उसको मैं ओवर कर लूंगा, बड़ी इम्पॉसिबल नहीं है. नहीं, तो किया उसने. कुछ करके दिखाया कि वो कॉन्फिडेंस उसमें था ऑलरेडी. या सो वो होना ज़रूरी है. 100% उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं या सकता. या जब आप एवरेस्ट की तैयारी कर रहे थे, आप पहुंच गए थे, या तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? आपकी क्या तैयारी थी? मैंने अपना 100% दिया डेडिकेटेडली. लाइक मैंने अपना ट्रेनिंग डिसिप्लिन वाइज फॉलो किया. उसके अलावा मैंने जैसे जो 3 M's थे उस पे वर्क किया. उसके बाद एक चीज़ मैंने अपने आप से प्रॉमिस की कि पहाड़ वही हैं. अगर नहीं भी होगा तो मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं फिर से मेहनत करके फिर से आऊँगा. आई कम बैक. या बट मुझे वापस जाना है क्योंकि जब तक मैं अपने पेरेंट्स के पास जाके वो स्टोरी उनको नहीं बताऊंगा तो इट विल नॉट कम टू फुल सर्कल, या इट विल नॉट बी जस्टिफाइड. या सो आई थिंक ये मेरे दिमाग में हमेशा था, नो माउंटेन इज वर्थ डाइंग फॉर, इट इज ऑलवेज वर्थ लिविंग फॉर. या सो आई वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डाई. डाई. सो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से, इट्स ओके. नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, जब तक हो रहा है तब तक करेंगे. करेंगे. या तो घर पे तो देखिए सपोर्ट होता है, पेरेंट्स का या होता है, या सिबलिंग्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है. या वहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका था आपके साथ? सो बेसिकली अगर आप कोई भी माउंटेन क्लाइम कर रहे हो जो 8,000 मीटर का है, सो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं द शेरपा. ओके, सो बेसिकली शेरपा इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल ओके, एंड वो लोग माउंटेन्स में ही बॉर्न हुए हैं एट अ वेरी हायर एल्टीट्यूड. ओके. जैसे कि हम लोग एवरेस्ट रीजन के लिए कुंबू रीजन से जाना पड़ता है. सो दैट इज़ द कुंबू रीजन. वहाँ पे काफ़ी शेरपाज हैं जिन्होंने, जैसे मेरे मित्र हैं कामिरीटा शेरपा ओके. एंड वो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग एवरेस्ट 30 टाइम्स क्लाइम किया है ओह! एज अ गाइड. ओह! एंड या उनका गिनेस रिकॉर्ड है एंड उन्होंने काफ़ी दूसरे माउंटेन्स भी क्लाइम किए हैं. एंड ऐसे काफ़ी शेरपाज हैं जिनके बिना नॉट ओनली एवरेस्ट बट कोई भी माउंटेन क्लाइम करना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है. सो वो लोग आपका ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, जबकि माउंटेन में चलना डिफिकल्ट है आपके लिए, बट वो 30-30 40 किलो का सामान वजन लेके ऊपर तक जाते हैं. जब मुश्किल टाइम होता है, विंड चलती है, आपका टेंट टूटने वाला होता है, वो आपको टेंट वगैरह लगाने में हेल्प करते हैं. सो आइस पे प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है. सिर्फ पानी, खाने के लिए पानी गर्म करना हो उसके लिए आपको 40 मिनट तक बर्फ को मेल्ट करके पिघलाना पड़ता है, तब वो पानी आपको खाने के लिए मिलता है. तो वही एक सोर्स है पानी का वहाँ। हाँ, और तो पीने के लिए? पीने के लिए भी वही पानी हम यूज़ करते हैं. सो आइस को मेल्ट करके एंड इमेजिन करो टेम्परेचर बाहर -20 -25 है. उसमें आपको वॉशरूम करना है, वहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है. तो और आप इतने सारे लेयर्स पहने, कपड़े पहने हैं, तो वहाँ पे हम वॉशरूम के लिए एक अलग से वॉल बनाते हैं, तो वो उसमें हेल्प करते हैं. ओह! सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. उसके बिना आई डोंट थिंक कि
एवरेस्ट या कोई भी माउंटेन इजीली क्लाइम हो सकता है। एंड प्लस अगर आप बीमार हो या आपको रेस्क्यू या हेल्प की ज़रूरत है तो वो सबसे अपफ्रंट आपको हेल्प करने आते हैं। तो Sherpa people are one of the most strong, powerful and amazing humans I've met. हम्म And मैं लास्ट 8 से 9 साल से मैं जा रहा हूँ नेपाल एंड आई हैव बीन क्लाइंबिंग विद देम। दे आर सो वेलकमिंग, सो वार्म एंड उनके साथ रह के मैंने थोड़ी नेपाली भी सीख ली। अच्छा तो इतना मज़ा आता है उनके साथ बात करने में, हमेशा खुश रहते हैं, हँसते रहते हैं। एंड उनका बस यही है कि दे आर फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो उनको फैमिली को अच्छे से रेज़ करना है, अच्छे से हम्म सपोर्ट करना है। सो दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर किड्स हम्म एंड लुकिंग एट देम स्माइलिंग एवरी डे कि आज -15 -20 में इतना वज़न ढो के जाना, आना कंटिन्यूअस 6-7 घंटे क्लाइंब करना एंड वापस आके कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। जस्ट मैं पूछता हूँ, "दाई कैसा था?" "अच्छा था, बढ़िया था, मज़ा आया।" सो दे आर ऑलवेज वार्म एंड वेलकमिंग। मतलब यहाँ बॉम्बे में आदमी बीएमडब्ल्यू में बैठा है तो भी खुश नहीं है। हाँ, बट दे आर वेरी कंटेंट एंड बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं वो लोग। एंड उनका एक ही स्लोगन है, दाल भात पावर 24 आवर। अच्छा, सो बहुत दाल बात दाल पावर भात पावर 24 24 आवर, आवर। या सो नेपाल में इट्स अ वेरी बिग सेइंग माउंटेन्स में कि अच्छा सिंपल दाल भात खाओ और उससे आपको 24 घंटे ताकत आएगी। दैट इज व्हाट दे बिलीव एंड आई थिंक द मोस्ट हम्बल पीपल आई हैव मेट, आई लव क्लाइंबिंग विद देम। आपने आपका भी तो फेमस धीरे-धीरे होने लगा ना थेपला पावर। या फॉर गुज्जूस डेफिनेटली यस। तो मतलब विदाउट शेपर्स यू आर सेइंग कि इट्स एन इम्पॉसिबल जर्नी टू। डेफिनेटली यस, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क एंड इवन ऑन एवरेस्ट जैसे हम जब क्लाइंब करना शुरू करते हैं उससे पहले जब साउथ साइड, सो माउंटेन हैज डिफरेंट साइड्स। जो नेपाल से एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं वो साउथ फेस से हम लोग क्लाइंब करते हैं। ओके तो जब साउथ साइड से जाते हैं एवरेस्ट बेस कैंप के जस्ट आगे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कुंबू आइस फॉल, ओके जिसमें आइस के बड़े बड़े टावर्स हैं। इट्स लाइक अ मेज ऑफ पजल। सो अच्छा एक मेज को आपको आइस के बीच में से नेगोशिएट करना है एंड वो मूविंग रिवर ऑफ आइस है बिकॉज इट्स लाइक अ आइस फॉल। तो मूव होते रहते हैं और वो क्रैक होते रहते हैं। हर कदम पे आपको एक आवाज सुनाई देगा जहाँ पे वो क्रैक हो रहा है और वो टूट के गिर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी केयरफुल एंड इसमें रास्ता निकालना सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। अगर मान के चलो कि क्लाइंबर्स ढूंढने लगे तो उनको तो काफी सालों निकल जाएंगे। ये आइसफॉल डॉक्टर्स की एक टीम होती है जिसमें एक्सपीरियंस शेरपाज होते हैं जो जाके पहले वो रास्ता ढूंढते हैं एंड फिर वो फिक्स करते हैं ताकि हम आगे जा सके। तो हमारी ओह सेफ्टी के लिए वो रोप लगाते हैं वहां पे, हमारे लिए वो रास्ता रेडी करते हैं, तब जाके क्लाइंबर्स आगे पहुंच पाते हैं। ओह सो डेफिनेटली उनके बिना तो कुछ ही पॉसिबल हाँ नहीं है तो वहां पे। इट इज डिफिकल्ट मतलब दे डू इट टू ट्वाइस और थ्राइस और मे बी फोर टाइम्स यस, फॉर यू टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। सो हमसे ज्यादा रिस्क वो लेते हैं, जबकि हम 2023 में गए थे इसी आइस फॉल में। मैंने मैंने जिन शेरपा के साथ धौलागिरी क्लाइम किया था, पेम्बादाई, और उनके साथ और 2 शेरपास थे, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ओके सो वो इक्विपमेंट्स लेके जा रहे थे एंड एक क्रिवास जो जिसको हम बोलते हैं आइस में क्रैक होता है, वो क्रॉस करते करते वो कोलैप्स हो गए लैडर में और इमीडिएटली दे गॉट बरीड, विच वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट क्योंकि जस्ट सीजन शुरू ही हुआ था। बट विदाउट देयर सैक्रिफाइस आगे पॉसिबल नहीं होता। नहीं है सो डेफिनेटली दे डू अ वेरी गुड जॉब, हार्ड जॉब। एंड आई थिंक कि जब हम एज अ क्लाइंबर जाते हैं हर माउंटेनियर, तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उन्होंने जितने सैक्रिफाइसेस दिए शायद ही हम कर पाए। या सो दैट लुकिंग एट दोज पीपल एक आइडियलाइज हो जाता है एंड एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि चाहे मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, एटलीस्ट उनके जैसा अपने में वैल्यूज ले पाऊँ। हम्म So that is what biggest lessons that you learn from the mountain. कभी ऐसा हुआ कि समवन नीडेड योर हेल्प ऑन द माउंटेन एंड यू नो यू वेंट अहेड और आपने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा और आपने उनकी हेल्प की। Yeah, एक इंसिडेंट आई रिमेम्बर ऑन एवरेस्ट इटसेल्फ। मैं क्लाइम करके रिटर्न हो रहा था वापसी हम्म में एंड काफ़ी लोग मिले एंड वेदर काफ़ी ख़राब हो गया था, हम्म क्लाउडी हो गया एंड विंड्स बढ़ गए। सो जैसे जैसे मैं कैंप 4 के नज़दीक जा रहा था, सो अराउंड 300 मीटर के करीब कैंप 4 से, सो एक मैंने बॉडी जैसा वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बॉडी जैसा कुछ पड़ा हुआ है। ओ मैंने देखा कि अभी जब गए तब तो दिख नहीं रहा था, अब क्या है? तो मैंने नज़दीक गया तो देखा एक पर्सन वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज ब्रीथिंग वेरी स्लोली एंड उसका ऑक्सीजन बस ख़त्म ही होने वाला था। तो मैंने उसको उठाने का ट्राई किया वगैरह, बट वो नहीं हिल रहा था एंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर मेरे पास जो एक एम्प्टी ऑक्सीजन सिलेंडर था उसमें थोड़ा ऑक्सीजन बचा था। तो मैंने बोला इसको मैं वो ट्राई करता हूँ, तो मैंने उसका ऑक्सीजन रिप्लेस किया, वो वाली बॉटल दी उसको और थोड़ा बढ़ा दिया ऑक्सीजन का फ्लो। तो ही गैस्प्ड एंड ही रिवाइव्ड। सो आई आस्क्ड हिम ब्रदर, लाइक उनका नाम वगैरह पूछा।
एंड फिर मैंने बोला क्या हो गया आपको? तो बोला मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मैं सबमिट करके आ रहा हूँ एंड मेरे से चला नहीं जा रहा, तो मैं रेस्ट करने बैठा। सरप्राइजिंगली जब हम लोग ऊपर जाते हैं तब हमारे पास एक गोल होता है, एक एनर्जी होती है, बट रिटर्न में यू आर सो एग्जॉस्टेड कि मेजोरिटी एक्सीडेंट्स क्लाइंबिंग में रिटर्न में ही होते हैं, वापसी में। ओह! या क्योंकि माइंड आपका गिव अप कर देता है वो टाइम पर। अब आपको पता है यू आर केयर फ्री, सो आप इतना ध्यान नहीं देते और एनर्जी भी नहीं है, और प्लस यू आर गोइंग टू ग्रेविटी, सो एक फोर्स जो पुल बोलते हैं ना वो आने लगता है। तो मैंने उनको अपने जेब में से स्नीकर बार निकाली, बट बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड वो जम गई थी, वो एकदम हार्ड हो गई थी। हुँ, तो हुँ। मैंने अपने मुँह से उसको वार्म करा, थोड़ा मेल्ट किया, उनको दिया, खिलाया। फिर मेरे बैग में पानी था वो पिलाया। फिर मैंने उनको अपने पैर पे खड़ा करने का ट्राई किया, बट उनका बैलेंस नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उनको अपने शोल्डर पे लेके मैं उनको थोड़ा ड्रैग करके ले गया आगे तक, बट ही वाज़ क्वाइट हेवी एंड हेल्थियर देन मी, और हाइट था उनका। मैंने बोला ऐसे तो फिर हम दोनों को कुछ हो जाएगा क्योंकि हम पहुँच ही नहीं पाएँगे, काफ़ी हुँ, ज़्यादा टाइम लग रहा था। हुँ। मैंने कहा बोला आप यहीं पे रुको, मैं जाके हेल्प लेके आता हूँ। एंड मैं टेंट में गया भाग-भाग के, एंड मैंने अपना जस्ट बैग वगैरह रखा। बट वहाँ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आपको चलना पड़ता है क्योंकि यू आर इन द डेड ज़ोन। या 8000 मीटर के ऊपर इज़ द डेड ज़ोन एज़ आई सेड। ओह! सो 2 शेर्पाज़, मैंने उनको बोले प्लीज़ भैया मेरी मदद कर दो, आप चलिए। उन्होंने सोचा कुछ नहीं, मेरे साथ ऑक्सीजन का बॉटल लिया और चले। हमने जाके उनको सपोर्ट करके कैंप में लेके आए। उनको खिलाया-पिलाया, एनर्जाइज़ किया थोड़ा। फिर उनको हमने डिसाइड किया और नीचे, क्योंकि आप जैसे-जैसे नीचे आने लगते हो, थोड़ा-थोड़ा आप रिवाइव होने लगते हो क्योंकि आप एल्टीट्यूड से बाहर आ रहे हो, खतरे हुँ, से बाहर आ रहे हो। हुँ। तो उनको हम नीचे कैंप 2 तक लेके आए, एंड फिर मतलब जो शेर्पाज़ थे उन्होंने हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू का अरेंजमेंट किया। कैंप 2 से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू पॉसिबल था। वहाँ से वो फ्लाई करके काठमांडू गए एंड वी कुड सेव हिम। सो आई थिंक या दैट वन वे, एंड हमने जस्ट हार्डली कुछ बात की थी। उसके 1 महीने बाद जब उन्होंने मेरे को मैसेज किया, बिकॉज़ दैट गाय वाज़ फ्रॉम सऊदी ओह! एंड एन इंडियन सेटल्ड इन सऊदी। अच्छा। सो आई फेल्ट वेरी गुड। उन्होंने थैंक यू वगैरह लिखा, एंड हमारी बात हुई फिर कि अच्छा लगा उनको भी कि मैंने उनको बचाने में कंट्रीब्यूट किया एंड एवरीथिंग। सो या दैट इंसिडेंस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड विल ऑलवेज रिमेन विद मी, कि जब भी पॉसिबल है आई गिव माय बेस्ट टू सेव या लाइव्स। नहीं या तो ऐसे टाइम पे तो पहले आदमी ये सोचेगा कि मैं अपनी या जान बचाऊँ बिकॉज़ आप इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में यस, हो। यस। और मेरा भी ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने पे ही था हुँ, क्योंकि आई हैव हुँ। सबमिटेड एंड आई वाज कमिंग बैक, तो थोड़ा बैक ही बचा हुआ था। सो बट एज दे सेड इफ यू हैव गुड इंटेंशंस देन गॉड ऑलवेज हेल्प्स यू। सो या 100%। या एक किस्सा आपके साथ भी हुआ था जब आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका टो फ्रीज़ या हुआ? ओनली या इफ यू वांट टू शेयर। या हम लोग कंचनजंगा क्लाइंब कर रहे थे, एंड समिट के दिन पे वेदर खराब हो गया, एंड हम लोग ऑलरेडी रूट ओपन कर रहे थे एंड वी वर क्लाइंबिंग 16 आवर्स। एंड कंचनजंगा एक ऐसा माउंटेन है जिसका समिट सबसे लंबा है, अच्छा। और वहाँ पे रूट ओपन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कंफ्यूजिंग है, रॉक्स ज़्यादा है। तो नॉर्मली जो दूसरे माउंटेन्स हैं उसमें समिट आपको दिख जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एंड बहुत लोगों ने कंचनजंगा का समिट मिस किया है बिकॉज दे हैव क्लाइंब सम अदर पार्ट ऑफ द माउंटेन। अच्छा, तो उसको लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट है और ट्रिकी है, और जिसने पहले क्लाइंब किया वो एक्सपीरियंस शेरपा होगा तो उसको याद होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत कि सारी यहीं गलीज से है। जाना है। हाँ, हाँ। एंड हम रात को क्लाइंब करते हैं समिट पुश, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अंधेरे में उसको लोकेट करना। सो हम लोग क्लाइंब कर रहे थे, सो हम एक गलत गली में घुस गए। फिर हमको रियलाइज़ हुआ डे लाइट में कि गलत है, हम वापस आए। फिर वापस गए तो 16 घंटे हो गए थे, एंड फिर हमने डिसाइड किया नहीं हम वापस जाएँगे अब। तब वापस 100 मीटर शॉर्ट थे हम, एंड वी टर्न्ड अराउंड, और हम लोग कैंप पे पहुँचे तो मैंने देखा मेरा टो का सेंसेशन चला गया है, एंड मैंने उसको रिवाइव करने का ट्राई किया बट इट वाज़ नॉट पॉसिबल, एंड हम उसको बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन होना। सो ओह! ब्लड वेसल्स हैड डाइड, एंड देन इमीडिएटली हम नीचे आए। मैंने वहाँ से फ्लाई किया काठमांडू, डॉक्टर को दिखाया, फिर आई केम बैक होम, एंड देन द ट्रीटमेंट जो भी उसको रिवाइव करने का हमने ट्राई किया, एचबीओटी बोलते हैं हम उसको, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, जहाँ पे वो एक कंप्रेस्ड चेंबर में आपको सुला के ऑक्सीजन देते हैं और फ्लो बढ़ाते हैं ब्लड का वो टिश्यूज तक, अगर वो रीजनरेट हो पाए। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ से वो नेल बेड है मेरा, वो तो कट हो गया राइट पैर का, एंड या दोज 2 मंथ्स आई कुड इवन, मैं खड़े नहीं हो पा रहा था, मेरी स्किन ग्राफ्टेड थी, वहाँ पे स्टिचेस थे, बोन भी कट करना पड़ा वो टो का। तो बहुत ही पेनफुल था, रात रात भर नींद नहीं आती थी, एंड दिमाग में बहुत से नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि अभी मैं क्लाइंब कर पाऊंगा कि नहीं, चल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि टो बहुत इंपॉर्टेंट है। या इट्स योर बैलेंसिंग या पॉइंट, एंड आइस वॉल जब वर्टिकल क्लाइंब करते हैं तो आप पहले टो से हिट वहीं करते से हैं, हिट या या
सो बहुत नेगेटिव थॉट्स थे, बट अगेन एज आई सेड दैट माय फैमिली फ्रेंड्स दे सपोर्टेड एंड दे सेड नहीं तू कर लेगा। एंड 2 महीने बाद आई स्टार्टेड वॉकिंग, आई स्टार्टेड जस्ट रिहैब होने लगा मेरा, फिर मसल मेमोरी फिर से गेन होने लगी, फिर मैंने धीरे-धीरे मैराथन्स अगेन रन करना स्टार्ट किए, ट्रेनिंग स्टार्ट की एंड उसके बाद मैंने वापस एवरेस्ट पे मेरे नेफ्यू को गाइड किया एंड माउंट मकालू क्लाइंब किया, सो कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हुआ एंड अभी इस साल फिर से कंचनजंगा क्लाइंब कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर वो इंसिडेंट और वो मोमेंट विल कीप ऑन पिंचिंग मी और थॉट विल कम अक्रॉस अगेन एंड अगेन, बट दैट इज़ वेयर आई हैव टू फाइट and more than a physical task, this time it will be a mental task. Yeah, 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 but I am prepared and I will make it happen for yeah, 100%. We have faith in you, sure. केवल क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके माउंटेनियरिंग को लेके, लाइफ को लेके? So definitely mountains climb करने हैं, so total 14 highest mountains हैं world के, ओके 14 8,000 हम उसको बोलते हैं, जिसमें से 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीओके में, ओह and no Indian has climbed that क्योंकि इंडियंस को परमिट नहीं है plus security reasons. So my aim will be to open this path and try to climb those, to mend bridges there. Definitely it will require a lot because definitely इट्स it is नॉट अ about इजी easy टास्क या task, but why not? जब हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड के 8 बिलियन पॉपुलेशन की, उसमें से सिर्फ व्हाई नॉट ओनली इंडियंस कैन गो। सो इफ आई टॉक अबाउट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, so I want to find out a way where we have friendly matches, we have done a lot in the past, या then why not do something here and try to mend that bridge. या 100%. Yeah, so that will be one of my aim, and I've climbed 7-8,000ers, so अब मेरे 2 peak बचे हैं, which अच्छा is Mount Kanchenjunga, India's highest and world's 3rd highest mountain, and Mount Shishapangma, which is in Tibet, China, which is the 14th highest mountain in the world. ओह So this year, my aim is to try to climb those two. And if I do that, I'll be the first Indian in the history to climb 8,000ers. ओह So वाओ somewhere back of the mind, again, it feels like, okay, I done Everest Lotse and set up a bar. So let's complete this and set up another bar so that, people come forward and be a part of this adventure. या So they start their journey here. या So that will be an aim. And definitely it's a very big task to raise funds and to find brands and sponsors. But the hunt is on and I'll not give up. So definitely we'll make this happen. या 100%. Yeah. आफ्टर अचीविंग दिस व्हाट्स नेक्स्ट? मान लीजिए आपने ये 14 पीक्स Yeah. क्लाइम किए, Yeah. उसके बाद क्या करोगे आप? कुछ तो चलता होगा माइंड में. Yes. So definitely बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट दिमाग में है. So when जैसे कि मैं टॉक कर रहा हूँ हमारे वेस्टर्न घाट्स की, सह्याद्रीज हम उसको बोलते हैं. हम्म, So Mount Kalsubai is the highest mountain in the Western Ghats and Okay. Sahyadri part. So जब मैं इस साल गया तो काफी वहाँ पे कचरा था, कूड़ा था, बिकॉज वहाँ पे कलसुबाई देवी का मंदिर है टॉप पे, तो काफी श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे हम्म, दर्शन करने. एंड जब मैंने ये देखा तो थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा क्योंकि वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी या कोई भी वैन नहीं पहुँच सकती है क्योंकि देयर आर नो रोड्स, और प्लस ऊपर जाके वहाँ से गार्बेज कलेक्ट करके वापस लाना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. हम्म, सो इस साल मैंने डिसाइड किया है कि आई हैव रजिस्टर्ड माई NGO, सून इट विल बी रजिस्टर्ड, एंड आई विल डू क्लीन अप कैंप्स ऑल ओवर महाराष्ट्र जहाँ पे माउंटेन्स है, एंड आई विल ट्रेन द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स जो नियर बाय है, हाउ दे कैन रिसाइकल द वेस्ट, and my aim is to make the mountains plastic free. So this year हम लोग कलसुबाई पे हमने almost 200 kgs of plastic लेके आए, oh but that was beautiful. just 20%. अच्छा Still there is 80% lying there. And yeah, so ऐसे हमारे यहाँ पे कितने forts हैं, प्री हिस्टोरिक फोर्ट्स है जैसे शिवाजी महाराज जी के बिल्कुल. टाइम के एंड एवरीथिंग. सो एम यही है सबसे बड़ा कि बाय ईयर एंड हम एटलीस्ट 30-40% ऑफ द फोर्ट्स को क्लीन कर पाए और ये सारा प्लास्टिक वापस लेके आए, सो दैट दे स्टार्ट हीलिंग Yeah, एंड आगे आने वाली जनरेशन्स को जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही वो उसको देख सके. 100%. This is Yeah. such a beautiful thought, Yeah. to do this. Yeah. And मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी सरकार है हमारी. Yeah. एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के द्वारा जब उन तक ये बात जाए Yeah. तो सब सपोर्ट में खड़े ही रहेंगे. Yes. 100%. Yes. तो मुझे बहुत बिलीव है अपने महाराष्ट्र शासन पर. Yeah. Same here. या तो आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे. Yeah. क्या एक बात आप जनता को बोलना चाहते हो कि एज अ मैसेज जो भी आपके दिल में है? मैं एक ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं, सो हम लोग बिस्लरी की बॉटल बाय करते हैं विच एड्स अप, या हम कुछ भी प्लास्टिक
कैरी करते हैं और हम उसको एडअप करते हैं। सो एक मैं यही बोलना चाहूँगा, ट्राई टू रिड्यूस दैट। हमारे अगर कार्बन फुटप्रिंट्स हम खुद रिड्यूस करें तो काफ़ी हद तक जो पाइल अप हो रहा है वो नहीं होगा। सो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपनी एक पानी की बॉटल हमेशा साथ में रखता हूँ, उसी को मैं जहाँ पे हो रिफ़िल कर लेता हूँ। सो आई एम श्योर कोई भी होटल में नियर बाय या कहीं पे भी आप उसको रिफ़िल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बहुत बार, जैसे कि अगर सपोज़ आई एम ट्रैवलिंग फॉर फ्यू डेज़, तो मेरी एक स्मॉल किट है जिसमें एक नाइफ, फोर्क एंड स्पून है। उसके अलावा एक स्ट्रॉ है और एक स्ट्रॉ क्लीनिंग ब्रश है, वो मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। तो जितना हो सके मैं उतना प्लास्टिक का कम यूज़ करता हूँ ताकि वो पाइल अप ना हो। एंड आई थिंक अगर हम लोग सब लोग ये फॉलो करें तो जो कचरे का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक कम हो कम जाएगा। होगा। जो पुराना है उसको तो क्लीन करना ही है, बट एटलीस्ट जब ये नया इंट्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा तो लोड काफ़ी कम हो जाएगा Yeah. एंड वी कैन रिमूव दैट एंड डेफिनेटली वी कैन मेक द प्लेस मच मोर ग्रीनर एंड मच मोर I बेटर। totally agree. Yeah. बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आज हम लोग, जब मैं ट्रेन करता हूँ, मैं मैराथन्स रन करता हूँ, तो आई सी द AQI ड्रॉपिंग, like it has increased so much that mornings are misty, sometimes I find difficult in running, Mm. and you get that chest congestion, clogging, etc. Yeah. Yeah. So to have that cleaner air we have to have more of greenery, more of plants. So हम लोग ट्री प्लांटेशन भी करते हैं काफ़ी हद तक, बट जैसे जैसे ये पोल्यूशन रिड्यूस होते जाएगा automatically things will align up, and I'm sure that जो land is getting wasted because of the plastic accumulation, we can use that land for tree plantations and for this purpose. Yeah, बाकी केवल थैंक यू सो मच it was a फॉर pleasure. कमिंग ऑन दिस शो। Yeah, एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि yeah. अगर आप मेन कैमरा में देख के बस बोल दें कि लेट्स सब्सक्राइब टू रोज ट्रेल ब्लेजर पॉडकास्ट। I'm not a YouTuber, but still, I love the way Abhishek said that please subscribe to Rose Trailblazer podcast, where you learn so many things, and I'm sure you'll come up with amazing ideas and amazing podcasts ahead. I myself am subscribing first, and see you guys there. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Yeah, thank थैंक you यू। so much.